गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं वीडी टॉक शो में विवेक डोबा आप सभी का स्वागत करता हूं। सफलता की अपनी अपनी परिभाषा होती है। सक्सेस के लिए, हैप्पीनेस के लिए हर कोई संघर्ष करता है और सफलता प्राप्त करता है। आज ऐसी ही पर्सनैलिटी, ऐसी शख्सियत से आज हम बात करने जा रहे हैं जिन्होंने साधारण से असाधारण सफलता अपने जीवन में प्राप्त की। प्लीज वेलकम मिस्टर वैभव वाड़के, जिन्होंने अपने जीवन में एक ऐसी सफलता, एक ऐसी खुशी प्राप्त की है। हम उनसे ही जान लेते हैं। वेलकम वैभव जी, कैसे हो आप? थैंक यू सर। आप मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। थैंक यू सर एंड फॉर इनवाइटिंग मी फॉर वीडी शो एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो। आप कैसे हो सर? मस्त मस्त। वैभव, हमें बताइए कि आपका जर्नी कैसा था, बचपन से लेके आपने जो इंजीनियरिंग किया वहां तक का सफर कैसा था? बिल्कुल सर। पहले मैं ये बताता हूँ कि मतलब मैं अभी कर क्या रहा हूँ। सो आई एम करंटली वर्किंग एज इंजीनियरिंग लीड इन पर्सिस्टेंट सिस्टम्स पुणे। सो यू कैन से आई एम एन IT प्रोफेशनल. So yeah, so coming back to journey, so basically I am from Amravati, and I have completed my academics 10th, 12th from Amravati, and I am graduated from Sitna College of Engineering and Technology in Computer Science branch, Amravati. So that is about my academics. I know, I mean, and I remember how I met you. मतलब आपको कैसे मिला वो कौन सा दिन, मतलब क्या वो circumstances थे, and how do I got to know your name at that time. I think that was the time of 2003, and I was in 12th standard. The board exams were approaching. Despite of having tuitions of maths at a very reputed maths professor of that time, still, I mean, I, along with my two friends, were not very clear with some of the concepts of maths. And I think I got the reference of you from my sister, and I heard that you were taking a crash course of 2 days, I think, for maths. And we joined that, and this is how we got a taste of simple teaching methodology of everything from you, sir. So that's how that's how we met first time. And so after 12th is completed, the real journey started of engineering. So we got the admission in engineering, and I think you were taking private classes only for polytechnic at that time. So we all friends insisted you to start engineering private classes as well. I Right. remember this. Right. So, but you were a bit hesitant at first time, but I think you took a decision to give a shot at our sincere request. So that was the first engineering batch you were started, and we all witnessed a fantastic journey for 2 years. मैथ्स 1 था, फिर मैथ्स 2 था, मैथ्स 3 था। मुझे मुझे मैथ्स इतना पसंद नहीं था तब, लेकिन आपने इतना आसान और उसको इतना इंटरेस्टिंग बना दिया था यूजिंग वेरियस मेथोडोलॉजी। रात रात भर आपका हमें ट्यूशन पढ़ाना, मतलब हमें मुझे अभी भी याद है वो। आई थिंक मैथ्स 2 का पेपर था और आप हमें 3 बजे तक रात को पढ़ा रहे थे कि हमारे कंसेप्ट क्लियर कर रहे थे कि डेरिवेटिव, लिमिट्स एंड इंटीग्रेशन, आई मीन ऑल दोज थिंग्स. Those night batches I all remember. So I think then never had any problem then clearing maths paper, never had any backlog or as well for maths in engineering. So I think this was fantastic. I think we had a very good farewell. We all celebrated our 2 years journey. But apart from that, some things I got to learn from I mean during that time is everything is possible. Right. If you wanting to give your best efforts, never underestimate yourself. Even average student like me could clear the maths in one shot, so everybody can. Just you need to have that confidence in you, and I think you gave that confidence to us. And third one is at least give one shot before you give up, and many more things you taught us. And then I graduated with engineering degree. So we still were in contact for various reasons. We were developing a software for students. Later then I got my first job in Pune. So this was the time of I think 2007, and in 2007 to 2011 I switched a couple of companies, and in 2011 I joined Persistent Systems in Nagpur location. But then due to some project requirement, I moved to Pune there 3 years ago. So I've been in Pune from last 3 years, and I've been I'm happily married,
I'm happily married and I have a daughter. Great. Whose name is Varada, and she is 1.5 years old. Wow. So I think this is the journey you can say I experienced till now. मुझे जहां तक याद है, आफ्टर इंजीनियरिंग आपने मुंबई में भी जॉब किया था। हाँ सर, बिल्कुल। तो वो जो स्ट्रगल का टाइम था, जैसे यूथ को आप क्या कहना चाहोगे कि बहुत लोग क्या होते हैं कि सबको एमएनसी में काम करना है, बड़े कंपनी में काम करना है, लेकिन बोलते हैं ना कि एक स्मॉल स्टेप से ही आपका जर्नी शुरू होता है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? Right, sir. So I got placed in Mumbai around the time of I think 2007. So my first company was Enable M. So I joined as a junior software developer there, and I was residing at Vashi, and my company was at Andheri. So I think ये बहुत मतलब मुझे at least दो ट्रेन्स मतलब बदल के जाना पड़ता था वहाँ पे। मैं वाशी में रहता था और मेरी कंपनी अंधेरी में थी। मुझे 7 बजे कौन से भी हालत में 6:30 बजे निकलना पड़ता था। मैं जब 6:30 बजे निकलता था इतनी भीड़ भाड़ में, तब मुझे जाके वो 9 बजे की ऑफिस मिलती थी, और वहाँ पे फिर 9 से 7, फिर 7 से फिर आपको ट्रेन पकड़नी है मतलब, और फिर आपको वाशी पहुंचना है। तो ये पूरा स्ट्रगल मैंने 6 महीने किया। कभी कभी मतलब बारिश में आपको पता ऑलरेडी रहेगा कि मुंबई में अगर आप लोकल से मतलब आप प्रवास करते हो तो कैसे कितनी दिक्कत होती है। तो वो स्ट्रगल का टाइम था। मुझे सैलरी भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, मेरी सैलरी 6,000 ही थी पहले। लेकिन मेरे इसमें एक वो जज्बा था कि ऐसे नहीं है कि मुझे एमएनसी में ही काम करना है, पहले मुझे मेरे बेसिक्स पे काम करना है, क्योंकि छोटी कंपनी में आपको बहुत सारे सीखने को मिलता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिलता है। तो वो मेरे बैक ऑफ द माइंड में चलता रहता कि नहीं, अगर मैं मेरे बेसिक्स क्लियर कर लूँ तो फिर एमएनसी में मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी जाने में। तो वो मैंने जब पहले 3 साल छोटी कंपनी या फिर मिड स्केल कंपनीज में काम किया तो मेरे सारे बेसिक क्लियर हुए। मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया। ऐसा भी होता था कभी कभी कि मुझे लेट नाइट्स मतलब सुबह 9 बजे आके भी लेट नाइट्स रुकना पड़ता था। पूरा 2-2 दिन 20-24 आवर्स काम किया है कभी कभी प्रोजेक्ट रिलीज की वजह से। तो वो भी काफ़ी दिन मतलब याद रखने लायक है। आई मीन मैं इतना कह सकता हूँ सर, मतलब ये काफ़ी इंस्पायरिंग था। और उसके बाद मैं 2011 में फिर परसिस्टेंट सिस्टम एमएनसी में मैंने इंटरव्यू दिया, फिर वहाँ पे सिलेक्ट हुआ और फिर मुझे वो नागपुर लोकेशन मिली। तो हाँ, मतलब ये काफ़ी स्ट्रगल का टाइम था, लेकिन मुझे मतलब यही कहना है कि सबसे आप हिम्मत मत हारो, just to be honest with yourself and just ask yourself a question. So am I really prepared if I do not get any job, or what are the other options, I mean, we can realize or we can utilize. So this is the message I want to give to for this journey. यानी छोटे कंपनी में हमारी न्यू बन जाती है, बेस बन जाता है, और उसी को यूज करके हम आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। वैभव, आपने हमारा इग्नाइट द जीनियस किया, तो जो ट्रेनिंग के पहले वैभव था और ट्रेनिंग के बाद का वैभव था, तो उसमें क्या चेंज पाते हो आप? हाँ सर, आई थिंक ये तब की बात है जब मैं नागपुर लोकेशन में था। आई वॉज वर्किंग फ्रॉम नागपुर लोकेशन एंड वी वेर इन कॉन्टैक्ट बिकॉज आई यूज टू फ्रिक्वेंटली विजिट अमरावती in weekend or alternate weekends, you can say. So you were practitioner of NLP training at that time, and I did not know all about it. So what is NLP and all that stuff. So you offered me to join this one-day training with my wife, whose name was Ignite the Genius, right sir? So we joined this and we took a lot of positives, I can say, from this training. So you completely changed the view, the perspective of life. So you taught us, so I can go one by one. I mean, I can point out all those things you taught us on that day. So you taught us first SMART goals, which would be very specific and time bound, and not to set very big goals or large goals at once. So just set small goals first, achieve it, and then go for next one. So this is the major breakthrough, I can say, from NLP classes. And then you taught us how to give feedback to others by using sandwich method. सर वो बहुत मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग था सैंडविच मेथड। हमने वो काफ़ी इंटरैक्टिव था, मतलब दूसरों के साथ कैसे आपको फीडबैक देना है, मतलब आपका कोई टीम मेंबर हो या फिर कोई सबऑर्डिनेट हो,
तो आपको उसको कैसे मतलब उसको बुरा भी ना लगे और कैसे उसके मतलब तरफ बराबर फीडबैक भी पहुंचे, तो ये काफी अपनी इंटरेस्टिंग सिखाया था. सो एंड इट आई मस्ट टेल यू, इट ऑफन हेल्प्स मी इन माय वर्किंग एनवायरनमेंट इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड एज वेल. And then you taught us some meditation techniques like Hakalu and some other meditation technique to give yourself a full chance to concentrate on your body, which enhances the concentration. And I think that's a very much important in your life, and I think this in this corona pandemic situation. So lot of positives I can say I brought out from this training. वैभव, आपके लाइफ के ऐसे कौन से 2 मेजर ब्रेक थ्रू है जो आप सोचते हो कि वो आपके लाइफ के टर्निंग पॉइंट है और जिसके कारण आज ये वैभव दिखता है, ये अलग वैभव हम देखते हैं? कैसा था सर, मैं मतलब मैं पहले ये जो आपने मैं NLP जो इग्नाइट द जीनियस से क्लास किया था, उसके पहले मैं कैसा था कि मतलब ऐसा कुछ मेरा गोल क्रिएशन का जो टेक्निक था ना, ऐसा कुछ मतलब फिक्स नहीं रहता था कि हाँ मतलब मैं मेरे ड्रीम्स थे कि मैं ये करूँ मैं वो करूँ, लेकिन उसको गोल में कन्वर्ट कर पाना मुश्किल हो जाता था काफी. तो मुझे वो पता नहीं था कि स्मार्ट गोल्स क्या रहते हैं, मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड देन टाइम बाइंड कैसे करना है. तो मैं एक गोल रखता था, ऐसे नहीं कि मैं गोल नहीं रखता था, पहले गोल रखता था लेकिन उसको टाइम बाइंड नहीं रहता था उसका कि हाँ ठीक है मुझे ये अचीव करना है. लेकिन वो NLP और you can say after completing Ignite the Genius, this was the major breakthrough. Like I said earlier, I now create smart goals for me and try to achieve it in very specific time. So if I take the example of if I have to be certified in something to enhance my technical skills, I set some time binding now and invest time on myself to achieve it. So I think this is the major breakthrough you can say you taught in very simple language. So अब मुझे गोल कैसे सेट करना है, हर इसका मैं गोल सेट करता हूँ, वो पहले अचीव करता हूँ और फिर अलग मतलब नेक्स्ट गोल पे जाता हूँ. तो this is the major breakthrough I can say, I mean I got from your Ignite the Genius class. माइलस्टोन सेट करते हो 1 2 3 और वो अचीव करते जा रहे हो. वाओ, ग्रेट. Exactly. तो काफी इजी होता है, मतलब आप एक गोल अचीव करते हो तो आपको समझ में आता है नहीं मतलब ये मैंने गोल अचीव कर लिया है, इसका मतलब है मैं और भी गोल अचीव कर सकता हूँ. अगर मैंने काफी लंबा गोल कर लिया कि जैसे मुझे कंपनी खड़ी करनी है, तो ये काफी वेग गोल हो गया, मतलब इसका प्रोसेस जो है ये काफी लंबा है, लेकिन मुझे ये करना है कि कंपनी खड़े करने के लिए मुझे काफी टेक्निकली स्ट्रांग होना पड़ेगा, राइट. तो मुझे पहले सर्टिफिकेशंस की आवश्यकता है, तो मैं एक एक सर्टिफिकेशन करता जाऊंगा कि मैं मेरा टेक्निकल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल स्किल एबिलिटी कैसे बढ़ाते जाऊंगा कि ये मैं इस पे फोकस ज्यादा करूंगा पहले. तो ये छोटे छोटे गोल मैं रखूंगा और ये आपने मुझे सिखाया. तो इसके लिए जो स्ट्रेस था ना, ये सर स्ट्रेस पूरा निकाल दिया आपने, मतलब ये छोटे छोटे गोल ये करके. और जब आपका एक गोल कंप्लीट होता है ना, तो आपको काफी सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं मेरा एक गोल कंप्लीट हो गया, अब मैं दूसरे गोल पे कर सकता हूँ. तो ये मैं ऐसे करके अचीव कर रहा हूँ. और फीडबैक भी सर, मतलब फीडबैक भी दूसरों को बुरा भी ना लगे और उनके तरफ मैसेज भी पहुंचे. ये भी मैं मतलब अभी जैसे मैं इंजीनियरिंग लीड हूँ तो मुझे काफ़ी करना पड़ता है मेरी टीम में, तो ये भी काफ़ी मतलब मुझे फ़ायदेमंद साबित हुआ. यानी जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आप एक टीम लीड करने लग गए हो आप. यस सर. आने वाले 5 सालों में वैभव खुद को कहाँ देखते हैं? सर ऐसा मैं खुद के लिए ऐसा गोल नहीं रखा है कि मैं 5 साल में यही बनूंगा, लेकिन मेरा मतलब एक है कि मैं मेरा खुद का जो प्रेजेंट है उससे मैं कुछ ना कुछ मतलब ज्यादा ही करूंगा. तो कुछ ना कुछ आज जो मेरा प्रेजेंट स्किल्स है उससे मुझे टेक्निकल स्किल्स मुझे ज्यादा बढ़ाने हैं, तो बस मुझे इस पे ही काम कराना है. मैं बहुत ज्यादा फ्यूचर पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ अभी कि मुझे यही करना है. लेकिन जैसे आपने बताया कि छोटे छोटे गोल्स आज जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट से मैं बेहतर कर पाऊँ आगे जाके, तो मुझे उस पर ज्यादा काम करना है. तो जो प्रेजेंट में है मैं उसमें जीता हूँ और आज जो है उससे बेहतर करने की कोशिश करता हूँ. यानी हमारा आज का दिन कल से कैसे बेहतर हो उस पे आप प्रैक्टिस करते हो. एग्जैक्टली सर. सो मैं ऐसा कुछ मैंने ये नहीं किया कि मुझे एक प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है या फिर सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनना है. ऑफ कोर्स मैं बैक ऑफ द माइंड वो मुझे रहता है कि नहीं हाँ मुझे ये अचीव करना है, लेकिन आज जो मैं हूँ उससे मैं कुछ बेहतर कर पाऊँ तो उससे उसका ज्यादा फायदा है. मतलब आज जो उससे कम ना कर पाओ, यानी हमारा आज कल से बेहतर हो. आज एग्जैक्टली सर. आज अगर हम हमारा
हर चीज 100% दे के करते तो ऑब्वियसली हमारा फ्यूचर बहुत बढ़िया होता। एग्जैक्टली सर। राइट राइट। आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि आज हर कोई सोचता है जॉब नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट बिजनेस सेट करना चाहिए, बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहिए, और सबकी सफलता की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है, तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैंने जो एक्सपीरियंस किया सर उससे बता सकता हूँ। सो देर इज नो ऑप्शन टू हार्ड वर्क और देर इज नो अल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। मतलब उसका कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। मतलब आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, बट ऑल आई कैन से इज स्मार्ट बनो, थोड़ा वर्क करने में स्मार्ट बनो। यू हैव टू बी अ स्मार्ट इन वर्क एज वेल। तुम कैसे हो उसका महत्व इतना ज्यादा नहीं है, बट तुम कैसे काम करते हो ना, दैट डज मैटर। सोचते जाओ कि एक चीज है जिसे मुझे बनाने में अगर 5 घंटे लगते हैं या उस प्रोसेस में अगर 5 घंटे लगते हैं, तो उसे 2 घंटे में उस प्रोसेस को कैसे मैं ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। अगर वो आप कर सकते हो तो मतलब उस पर अगर सोचते जाते हो तो उससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी। ऐसा नहीं मतलब कोई भी अगर आईटी सेक्टर में हो या नॉन आईटी सेक्टर में भी हो, मतलब ये मैंने जस्ट एग्जांपल लिया, लेकिन आपकी लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी बढ़ानी है तो ऑप्टिमाइज कैसे करना है कोई भी प्रोसेस को, तो उस पर आपको ध्यान देना है। Put a habit to learn new things always, because in every area of industry there are opportunities and there are gaps. So like nowadays nowadays the technology is very evolving and everyone is keen to using a new technology. So if you take the example of Zoom or online classes as well, so it's a two-way interaction currently. I mean, teacher can interact with student and student can interact with teacher, और in Zoom as well. So आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये टू वे इंटरेक्शन हो गया है। तो इसमें गैप्स क्या है अभी कि इसमें और कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं क्या हम, मतलब ये ठीक है इंटरेक्शन तो हो गया, मतलब बोलते बोलते और कुछ एक्टिविटीज हो सकते हैं क्या, अगर फैमिली मेम्बर्स Zoom कॉल्स में हैं तो बोलते बोलते कुछ और एक्टिविटीज हो सकती है क्या विद द हेल्प ऑफ यूजिंग गैजेट्स। और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस हो तो कुछ लैब एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं क्या विद द हेल्प ऑफ यूजिंग गैजेट्स और ऑल अदर स्टफ। तो आपको ये ढूंढना है, मतलब ये गैप, अगर इफ यू कैन कन्वर्ट दीज गैप्स इनटू अपॉर्चुनिटीज, देन दिस वर्ल्ड इज फॉर यू आई थिंक। सो दिस अपॉर्चुनिटी कम्स, आई मीन कुछ नया इन्वेंशन हो सकता है क्या, इन्वेंशन हो सकता है क्या, तो दिमाग को आपको यूज करते रहना है। So this is just an example. You can expand it in various ways for various areas. बहुत सारे न्यू एरियाज है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है। सो दीज आर द हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक्स नॉट एज ऑफ नाउ, रोबोटिक्स। सो हाँ, मतलब एक कोरोना क्राइसिस या कोरोना पैंडेमिक में आप मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों को मतलब सैलरी पे कट्स हो या फिर जॉब्स भी जाए, लेकिन ओवर द 6 months ऑफ टाइम ऐसा भी आ सकता है कि नए जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होगी। तो आपको मतलब ये सिर्फ टाइम निकालना है। टाइम इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर एनी हीलिंग। सो बस आपको ये ध्यान में रखना है। बहुत सारे न्यू एरियाज है। सो जस्ट टू बी ऑनेस्ट विथ यू एंड आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, आई एम रियली प्रिपेयर्ड इफ समथिंग गोज रॉन्ग इन माय लाइफ? डू आई हैव एनी अदर प्लान व्हिच आई हैव ऑलरेडी प्लान? इफ नॉट, देन इट्स द टाइम नाउ। So choose an area of interest, try to become master in it, and I think though no one can replace you. So always learning is the need of an hour. So this is the message I want to give you to youth. एकदम सही कहा आपने, क्योंकि मेहनत को कोई अल्टरनेटिव नहीं है। सही है। और दुनिया का बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द सेल्फ इन्वेस्टमेंट, कि हम एग्जैक्टली सर। सो आपको टाइम इन्वेस्ट करते रहना है खुद पर। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हम बहुत सारे थिंग्स में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन खुद पे इन्वेस्ट करना सीखो। अगर आप जब तक खुद पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करना सीखोगे ना, तब तक आप नहीं गोल अचीव कर पाओगे। तो ऐसा नहीं कि सारे फ्रीबीज या फ्रीबीज के मिलेंगे तो ही मैं ये करूंगा, ऐसा नहीं है। आपको इन्वेस्ट करना है खुद पे। अगर 4,000 आज जाते हैं तो उसका आउटपुट कल जाके आपको मिलेगा 1 लाख। तो खुद का लर्निंग हैबिट रखना सीखो। अगर आप 4,000 आज सीखने में लगाते भी हो तो उसका 100% आपको आउटपुट मिलेगा। और मैं मतलब ये कर चुका हूँ, इसके लिए मैं ये बोल सकता हूँ। सही कह रहे हो आप। इसीलिए मैं सभी को ये कहता हूँ कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आज मैं भी देखो, मैंने भी खुद पे बहुत काम किया, वैभव ने खुद पे बहुत काम किया, और वैभव का जो मैसेज था कि देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क करना है, लेकिन स्मार्ट वे से। फ्रेंड्स, ये थे हमारे वैभव वाड़के, जो एक साधारण
जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, एक छोटी कंपनी से आज इतने बड़े एमएनसी में जॉब कर रहे हैं। बहुत खुश है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। आपके जितने भी ड्रीम्स है वो रियलिटी में आए, और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू वैभव, आपने हमें समय दिया। Thank you, sir. Wish you a very good luck. थैंक यू वैभव।